قادرا سرورا رہنما دستگیر نحمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم وما خلقت والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم من بین العلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور بآواز بلند جس کو جو درود شریف یاد ہو، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور بآواز بلند نبی اور آل نبی پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اس سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور کیوں رضا اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا، اور یوں کہیے ہمارے رضا، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اب یہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ دھومیں کیسے مچیں گی؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ اڑاتے ہیں اور آپ لوگ اس کو ایک رائی کو پہاڑ کا درجہ دے دیتے ہیں، اس لیے یہ سب دھومیں نہیں مچ پا رہی ہیں۔ آپ وہی دیکھیے، فار ایگزامپل یہ لے لیے، جیسے انسان کو جینے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، جسم میں طاقت کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، فوڈ کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو تازگی دینا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت اور تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جان لیجئے گا جیسے کھانا ضروری ہے، اسی طرح روح میں تازگی لانے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت۔ میں نے یہ کیوں کہا خالی مسلک؟ ہاں، یہ تحدیث نعمت کے طور سے آپ کو بتاؤں، الحمدللہ اللہ رب العزت نے 19ویں صدی کے 2 کوہ نور ہیرے بھی اللہ رب العزت نے اسی خاندان کی جھولی میں ڈالے۔ بھئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب ہیں اس لیے تعریف کر رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں خلیفہ صاحب ہیں اس لیے تعریف کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اجداد نے جس ذات کی تعریف کرنا بتایا ہے، وہ میں اس کا بھی رشتہ بتاؤں کہ ہم سے کتنا ہے۔ میں نے کہا نا ہمارے اعلیٰ حضرت، ہمارے اعلیٰ حضرت، اس کی بات بتا رہا ہوں۔ تو 19ویں صدی کے 2 کوہ نور ہیرے اللہ رب العزت نے اسی خاندان کی جھولی میں ڈالے، جو شریعت و طریقت کے چمکتے دمکتے مہکتے ہوئے کوہ نور ہیرے ہیں۔ میں ہیروں کی بات کر نہیں رہا ہوں، میں کوہ نور کی بات کر رہا ہوں۔ وہ واحد اکیلا ہی ہوتا ہے اپنے میں، ہیرے ہر جگہ مل سکتے ہیں، کوہ نور ہر جگہ نہیں ملتا ہے، یہ بھی آپ جان لیے بلند کتنا مقام ہے الحمدللہ۔ تو وہ طریقت کا چمکتا، وہ شریعت کا چمکتا دمکتا مہکتا ہوا کوہ نور ہیرا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل ذات ہے، جو فقیر کے پر نانا کے والد سید شاہ علیہ رسول ماہر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور طریقت کا وہ چمکتا دمکتا مہکتا ہوا کوہ نور ہیرا عالم پناہ وارث پاک کی ذات ہے، جو الحمدللہ پیور اسماعیلی ہیں۔ فقیر قادری نے جس سلسلے میں ابھی آپ سب کو داخل کیا، آج سے تقریباً 100 سے 150 سال پہلے سرکار وارث پاک بھی اسی سلسلے میں بیعت ہوئے تھے، پیور اسماعیلی ہیں الحمدللہ۔ تو آپ یہ جان لیجئے گا، گھر والا اب گھر والے سے بات کرنے جا رہا ہے، والا آل محمدین ہٹا دیں گے تو نماز شاید مکمل نہیں ہوگی۔ یہ جان لیجیے سر، اگر گھوم کے نہیں ہے، جس ذات کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں نا، وہ ذات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے نا، ٹھیک اس کا 46واں جب نام آتا ہے نا، تو الحمدللہ فقیر کے 5 بھائیوں کا نام ہے، اور الحمدللہ نجیب الطرفین سید ہوں،
नजीब उत्तरफैन जानते हैं ना, उलमाए किराम समझ रहे होंगे, नजीब उत्तरफैन उसको कहते हैं जो माँ का सिलसिला उठाओ तो सैयदी सैयद और बाप का उठाओ तो सैयदी सैयद। तभी बिलखुसूस मेरे आला हजरत ने बिलखुसूस इसी खानदान के लिए कहा था कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। अरे बोल बाले मेरी सरकारों के, फिर कहते हैं ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल अरे बढ़कर कसीदा नूर का। तो ये अहमद नूरी कोई दूर नहीं है, फकीर के नाना के वालिद का ही नाम है सैयद शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी महारवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हमारे ननिहाल के यूं कह लीजिए आखिरी कुतुब का नाम है। और सरकार आला हजरत के दोनों शहजादे यानी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान और मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती आज़म हिंद कहना जरा छोटा लगता है मेरे लाल, मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम उज़्ज़ात को कहना अच्छा लगता है। मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान के पीर मुर्शिद का नाम है। बहुत सी खानकाहों में, बहुत से कुतुब, बहुत से कुब्बे में गए होंगे, बहुत गुंबद देखे होंगे, एक वाहिद आला हजरत का पीर खाना है जहां पर एक कुब्बे के नीचे 7 कुतुब आज़म फरमा। तो ये जान लीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह ननिहाली और ददियाली मामला बिल्कुल टाइट है, कोई ऐसा वैसा नहीं है, समझ लीजिएगा। अब घरवाला घरवाले से बताने जा रहा है, हजरत कर दिया है। देखिए एक बात बता दें, बाप की एक औलाद अपने बाप की हिजो कराएगा, आप बताओ, या डाउन करेगा? नहीं करेगा ना। आप लोग की एक मोटी से समझ में नहीं, लोग कहते कान ले गई, आप कान नहीं देखते हैं, आप कान के पीछे बात के पीछे भागते हैं। आप ये देखिए जब मेरे आका मेरे मौला सरकार अली करबल्लाहु वजहुल करीम जब थे तब उन्होंने बसत एहतराम कबूल किया और उसको माना, उसको जाना। अब इन लोगों की क्या हैसियत है आगे पीछे की यार, ये क्यों नहीं सोचते हो? क्या किसी के, क्या उस वक्त कोई में कमी थी? अरे उस वक्त भी मामला बहुत बुलंद बाला था भाई, तो इसलिए इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। जो उस वक्त जब मौलाई कायनात और जिसके अल्हम्दुलिल्लाह दोनों शहजादे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम यूं कह लीजिए कि जन्नत के सरदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों मौजूद हो, उसकी क्या तूती का आलम हो जब बसत एहतराम उन्होंने कबूल किया आगे पीछे करने की, है ना। तो इसलिए मैं ज्यादा तफसीली, हजरत ने तफसील बयान कर दी, मैंने सब सुन लिया, लेकिन आपसे मोटी बात रखिए, जब आपने नहीं माना, देखिए हमेशा याद रखिए बेटा चाहे जितना बड़ा बुलंद बाला बन जाए, कुछ हो जाए, यहाँ जितने उलमाए किराम बैठे, मैं सबसे छोटा हूं, मैं सबसे नीचे रहूंगा। मेरे वालिद माजिद सरकार नूरुल औलिया अलैहि रहमतुर रिजवान हमेशा इरशाद फरमाते थे कि, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर को जो मिला है ये बेशक अपने वालिद माजिद की खिदमत करके ही मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी हम वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत में रहता था। हमेशा वो नसीहताना गुफ्तगू करते थे और कहते थे हसन मियां जो खादिम होते हैं वही मखदूम हुआ करते हैं, ये याद रखना हमेशा। और ये याद रखिए मुझे पीरी मुरीदी मामला ज्यादा लगता नहीं, कोई मुरीद हुआ नहीं हुआ इससे हमसे मेरी बला से मामला, जो हो गया सुभान अल्लाह, नहीं हुआ तो भी सुभान अल्लाह। क्यों? चाहे तुम रजवी हो, चाहे अशरफी हो, चाहे इस्माइली हो, चाहे रज़ाकी हो, चाहे बरकाती हो, इससे मेरा सरोकार नहीं, मुझे इस पे बड़ा नाज है। ये तहदीस नेमत के तौर से कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो समंदर है ना वो मेरे ही शहर का है। कहीं से आओगे मिलोगे हमारे ही पास। तभी तो मेरे आला हजरत कहते कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। फिर फरमाते हैं तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन दूर का डोरा तेरा। और तहदीस नेमत के तौर से कहूं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत करीब का डोरा है, तो कहीं जाओगे घूम के आओगे जरूर अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे 4 पीढ़ी ऊपर मिलो, चाहे 6 पीढ़ी ऊपर मिलो, चाहे 2 पीढ़ी ऊपर मिलो, तो अलहम, क्योंकि वजह ना कि जितने ओरिजिनल हैं वो सब घर बैठे हैं, जितने डुप्लीकेट हैं वो सब रोड पे हैं। समझ रहे ना, है ना, क्योंकि यहाँ ज्यादा की तलब नहीं है, खुदा कम देता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे ना, करामाती पीर की जरूरत नहीं है आज के दौर में। जो शरीयत व तरीकत पे चलता हो, जो शरीयत पे चलता हो वही पीर है। शरीयत से जरा भी हटाओ वो मेरे बकौल आला हजरत के वो पैर है, उसको पैर ही समझना। आज जरा से कुछ कर दिया, जरा से कोई अच्छी वो हो गई, फौरन उसको सर पे रख लिया, ऐसा नहीं है। देखना वो कहाँ है, उसका सिलसिला कहाँ तक जाता है, तब उसको कबूल किया करो। तो इसलिए बिलखुसूस आज जो आजकल जो फितना बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल जबरदस्त तरह से उठा हुआ है, उसको ना देखो। हजरत ने पूरी तफसीली गुफ्तगू आपको बयान कर दी, मैं सिर्फ चंद अल्फाजों में वही बात कहना चाहूंगा। आप ये देखो जब मौलाई कायनात ने
बसत एहतराम कबूल किया था, तो हम लोग की क्या हैसियत है उसमें कुछ इफ एंड बट करने की, है ना। और ये याद रखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी सुना है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी फरमाते थे कि वो भी हर वक्त सरकार मौलाई कायनात को देखा करते थे। एक बार हम सब की अम्मा, हम सब की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अब्बा जान होते हैं या कहीं आम जगह पे भी होते हैं, और भी अगर मौजूद होते हैं आप उन्हीं को देखा करते हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैंने अपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि फरमाते थे मेरे आका कि अली को देखना भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है, इसलिए मैं अली को देखा करता हूँ। तू मोरा हाजी मैं तुरा हाजी बगोया, हम समझ रहे हैं ना मामला। इसमें काहे बीच में पड़े हो सब लोग बेलज्जत। अरे सबसे अहम बात है नमाज मेरे लाल। जब ये ज्यादा कोई बात करे तो सबसे पहला क्वेश्चन किया करो कि फजर पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। जो किसी हाल में, देखिए मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, जमीन पे चलो, जमीन में ही जाना है। जितनी परवाजें होती हैं सब लौट के जमीन पे ही आती हैं, इसलिए जमीन पे चलो। जितनी उड़ाने हैं सब उड़ेंगी, लेकिन आप गौर करो कोई 10 घंटे की, कोई 15 घंटे की, कोई ऐसी है कि ऊपर गई फिर आई नहीं, ऐसा नहीं है ना, आती सब जमीन पे ही है। इसलिए मैंने इंट्रो भी दे दिया और बात भी आपको बता दी। ये जान लीजिएगा बस शरीयत आज नमाज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बात करेंगे तो सहाबा तक पहुंच जाएंगे, जबकि हम लोग की हैसियतें नहीं है उनकी बातें, उनकी शान में गुफ्ताखी करने की। जिसने एक बार ईमान की हालत से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, कहा भी है उनकी शान में हम लोग की औकातें नहीं है, न कि चार यार। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जो हम वक्त मेरे आका के इर्द गिर्द रहा करते थे मानिंद सितारों के। इसलिए जब कोई बोले ना तो ये पहले बात बस, कहाँ मुंह मसूर की दाल, कैसी बातें करते हो। इसलिए सरकार मौलाई कायनात जो मेरे बुजुर्ग, ये याद रखिएगा बाप से बड़ा ही होता है, जो मेरे अजदाद करते चले आए वही सही है, वही सच है। इसलिए हमारे असलाफ ने यही माना, हम भी यही मानेंगे। और ये जान लीजिएगा कि और ज्यादा बोले बस नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजे सही नहीं रखते होंगे, वही सब ये सब काम करते होंगे जो, और यही जान लीजिएगा, और ये जितने ऐसी बातें करने वाले हैं वो सब तालीमात आला हजरत से हटे हुए हैं लोग। जो तालीमात आला हजरत पर अमल करेगा वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। जो गुस्ताखी जो मसलक से हटे लोग हैं वही करते हैं। इसलिए हमेशा नारों के पीछे कम पड़ो, तालीमात आला हजरत पर ज्यादा अमल करो। अब नारों का दौर कम कर दो। अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, कामरानी चाहिए, दुनिया में इज्जतें चाहिए, तो तालीमात आला हजरत को आम कर दो। इंशाअल्लाह दुनिया में ही इंशाअल्लाह बेपनाह इज्जतें मिलेंगी। ये फकीर कादरी का आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस पर अमल करना शुरू कर दो। आज हमने तालीमात आला हजरत को छोड़ दिया, इसलिए आज ये हाल हो गया है। और इंशाअल्लाह ना यकीन हो तो एक बार तालीमात आला हजरत पर अमल करके देखो, फिर जब मसलक आला हजरत के नारे लगाओगे ना तो गूंज बहुत दूर तक जाएगी। आज जो हम लोग की आवाजें पस्त हो गई ना, वजह यही है कि हम लोग अमली जिंदगी में पीछे हो गए। तो वादा करो कि इंशाअल्लाह हम सब नमाज जरूर पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। और बिलखुसूस जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं, मेरी एक बहुत हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती कि आज वादा करो अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, ये फकीर का बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल शुदा नुस्खा है। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, इज्जतें चाहते हो और आखिरत में बुलंदियां चाहते हो, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो। अपने माँ बाप की खिदमत सरे फेरिस्त रखना, तब कामयाब हो गए। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया तो। तो आज वादा करो कि इंशाअल्लाह सरे फेरिस्त अपने वालिदैन को रखना है, इंशाअल्लाह उनकी उनकी खुशी में अपनी ही खुशी रखना है, करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। और तीसरी और आखिरी सबसे अहम वो ये है कि हम सब इंशाअल्लाह ताला मसलक पे बहुत मजबूती के साथ गामजन रहेंगे इंशाअल्लाह। वो कौन सा मसलक? कोई पांचवा नहीं, हजरत ने बताया ना, बता रहे हैं पांचवा नहीं है, वही चार हैं जो हमारे असलाफ ने जो बताए हैं, और वही उस मसलक पे हम सब चलते हैं जिसपे हमारे असलाफ चलते चले आए। वो कौन सा मसलक? मसलक इमाम आजम अबू हनीफा, बस यूं कह लीजिए मसलक इमाम आजम अबू हनीफा, बस यूं कह लीजिए लेटेस्ट वर्जन का नाम मसलक आला हजरत है। इस पे मजबूती से चलते रहेंगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। इसलिए मसलक आला हजरत पर इंशाअल्लाह ताला मजबूती के साथ चलते रहिए, दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू रहेंगे। और इंशाअल्लाह इन तीन बातों पर अगर अमल किया
تو یہ فقیر قادری اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور اب ہم سب مل کر وہ کام کر لیں جو ہمارے آقا کرتے چلے آئے، یعنی اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود و سلام کی نذرانہ عقیدت پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں، درود و سلام بھیجیں.